Hello, good evening. We will start the class in 2 minutes. Good evening, students. Good evening, everyone. We will start, but before starting the class, I will discuss a few things. So, first of all, I hope I'm audible. My voice is clear. And before we start the class, I want to discuss a few things. So, the first topic that we are starting with is polity. Now, polity is one of the most predictable part of UPSC. So, basically, the amount of accuracy that you should have in polity is about 90 to 95%. So this is a highly accurate. In this portion you should be highly accurate, okay, because this is the most predictable part of UPSC. First thing. Second, polity, three kinds of question are asked, not just in UPSC, but whichever state PCS also, if you will give, whether you are giving Bihar or UP PCS or Haryana HCS or Punjab PSC, whichever you are giving, polity, economics, history, they forms the backbone of it. From polity, three kinds of questions are asked. Okay, the first is your philosophical. So basically, in from this, they try to understand your idea of polity, whether you understand the basic philosophies of polity or not. Okay. The second one that they ask is pure polity. Okay, consider it like Lakshmikant polity, whatever the constitution is. So that they ask, and then the third thing they ask is current affairs. Basically, there is nothing called current affairs. What they ask is polity in action. You can say like that. It is polity in action. Okay, so we will for the first two classes we will be covering this part, the philosophical part, because majority of the students they fail to answer questions from philosophical part because they do not understand the basic ideas of polity, like what they have asked, है ना? Is my audio clear now? Am I audible now? क्योंकि दो बच्चों ने no audio लिखा हुआ है. Is it clear now? Yes, sir, you're audible. Yes, sir. Okay. So philosophical part we will be covering. So the best portion to cover this is NCERT. Okay, and NCERT especially, even though I will recommend the 9 to 10th, but the best ones are the 11th ones. There are two books. First is called Political Theory, and the second one is called Indian Constitution at Work. So directly a number of questions have been asked from these two portions. Okay, so these two forms the base of your philosophical part. Then we will cover the basic polity. This we have given maximum time in our Kaizen program, so it will be around 18 to 19 classes. It is a big bulky document that we have, but obviously it is worth it. Okay, and then this we will cover later on. So this is the basic idea that I have discussed with you for polity. Then next when we will start, I think next is geography or whatever it is. So we will discuss about that also. When I will be teaching, I will make few points clear, because for this though I have made a note from political theory and Indian Constitution at Work, so it will be easier for me to cover. But when I will be teaching from PDFs, obviously it is not possible to teach you line by line. So I will be emphasizing on the important points. What are the questions that has been asked in previous year, from that
portion of the topic. What are the points that you should emphasize on, that you should try to remember on, and then we will cover a topic in that way. Okay, and obviously then I will be explaining some of the important ideas behind those whatever we are reading at that time. Okay, so this is the basic blueprint of polity, which I hope I have made it clear. Okay, so we will start the class. Okay, so we will start the class with the book Political Theory. Okay, it is the 11th book. So whatever important points are there has been covered in this PDF. Now, before, because a lot of students ask PDF, what will who will get the PDF? See, simply because it is a part of Kaizen program. So the classes are open for everyone. Everyone can sit and listen, but PDF will be shared with only those students who have joined it, because obviously otherwise it will be unfair with for them. Okay, so we will start with polity. The first chapter is what is politics. When we discuss about politics, what is politics? Okay, so there is a very beautiful quote by Gandhi ji, which you can use in your GS4 also. Ethics वगैरह में ऐसे में भी use कर सकते हैं. In which he says that politics envelops us like coil of snake, and there is no way other about but to wrestle with it. It simply means that you cannot escape politics in your life. When you're living a life, politics is something you cannot just say that, oh, I'm not interested in politics. Okay, because it controls all aspects of your life. Okay, now, but what is politics? Okay, what is the meaning of politics? What do we understand by politics? Okay, तो इसका first we compare, अगर हम economics की बात करते हैं तो we study about economic institutions. Okay, जैसे हम IMF पढ़ेंगे, RBI पढ़ेंगे, World Trade Organization पढ़ेंगे. So similarly, when we talk about politics, it is the study of political institutions. Okay, and which is the most important political institution? Obviously, that is government. जो हमारी सरकार होती है, it is the सुप्रीम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, दे आर आल्सो अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गवर्नमेंट. ठीक है, अब ना व्हाई गवर्नमेंट इज दैट मच इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट डिसाइड्स एवरीथिंग इन योर लाइफ. अगर आप आज एग्जाम दे रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, इट इज बिकॉज गवर्नमेंट हैज अलाउड यू टू टेक पार्ट इन यूपीएससी. ओके, अगर आप कोई एजुकेशन फॉलो कर रहे हो, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, देयर इज अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज बिकॉज गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड there will be a new kind of education policy and you have to change the way you are reading. So consider this, that every aspect of your life is decided by government. If you want to go to foreign, you will have to ask government. If you want to become a doctor, you will have to ask the government. I have to give the exam and I have to qualify this exam. So that's why jo political science hai, because it, see, economy will cover only just your one aspect of life, your economic. Sociology will, society will cover only your social relations, your friends, your family. But polity covers every aspect of your life, and that's why Aristotle called it master science. Hello. It is the master science. Haji. It's a request, please keep your mic off. Okay, because otherwise it disturbs the flow of class. Even though I have put it in automatic off, but some students can unmute themselves. So just keep yourself muted. That is one request, because it disturbs the class. And whatever question you have, you can ask at the end of the class. You can write that down and you can ask in the end of the class. Okay, now it is not just about study of government. Politics is not just about you're studying about the government, that's it. It is one part, but politics is also about studying about political process. Now process is what? It is active polity. Okay, jo actively, if you are asking, if you're asking questions, what is happening, what is not happening. ठीक है, तो you will be कि जैसे for example कि reservation है, ठीक है, या women's age of marriage. Now I say कि women's age of marriage should be 21. Someone will say no, it should be 18. Someone will say no, it should be 16. Then there are different age acceptable marriages according to religion also in India itself. Okay, so these are all very political issues which also need to be discussed during the discourse of politics. Okay, so this is what politics is. It is not just the study of government, it is study of government also, but it is study of political process also. Now relevance, why do we have to read politics, और why हमको पॉलिटी पढ़ना क्यों पड़ रहा है? ठीक है, तो जो आइडियाज होते हैं, दे आर ऑलवेज रेलेवेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है रूसो वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर. ही टॉक्ड अबाउट जनरल विल. जनरल विल मतलब, उसका मतलब ये था कि सपोज 3 people are saying कि वी विल ईट एप्पल. ओके,
and one person is saying कि I will eat mango, ठीक है, तो general will is that they want to eat apple, so apple should be distributed by government. तो यहाँ पे जो minority है उनका कोई say ही नहीं था, there was no say of minority, but it was a brute majoritarianism, है ना, so it became basis for majoritarian democracy. He also argued for क्या कहते हैं freedom for the humankind, ठीक है. फिर उसके बाद मार्क्स है, मार्क्स जो था he gave primacy to equality over freedom. See, there are two concepts, पहला होता है freedom या लिबर्टी आप जिसको बोलते हो, दूसरा होता है इक्वालिटी, ठीक है. इन सम एस्पेक्ट्स दीज आर बोथ एंटीथेटिकल टू ईच अदर. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को ज्यादा फ्रीडम दोगे तो इक्वालिटी कम होगी, अगर किसी को ज्यादा इक्वालिटी दोगे तो फ्रीडम कम होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है. इसका फॉर एग्जांपल आप रिजर्वेशन से ले सकते हो कि जैसे रिजर्वेशन है, सो रिजर्वेशन इज अ काइंड ऑफ अफर्मेटिव एक्शन फॉर इक्वालिटी, इट हैज बीन प्रोवाइडेड. तो उस रिजर्वेशन पे आपको आपका फ्रीडम कम हो रहा है. फॉर एग्जांपल 180 सीट्स हैं आईएएस की, ठीक है, बट इफ 90 आर ऑलरेडी रिजर्व, सो फॉर द सेक ऑफ इक्वालिटी जो आपकी फ्रीडम है दैट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, ठीक है. ये क्लियरली मेंशन्ड होता है, मतलब यू कैन स्टडी अबाउट इट क्लियरली ड्यूरिंग द इकोनॉमिक्स फेयर, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट आप ये याद रखो कि जो मार्क्स थे ही गेव प्राइमेसी टू इक्वालिटी ओवर फ्रीडम, ठीक है. देन जो गांधी थे और मार्क्स थे, दे बोथ एनविजन द सोसाइटी इन विच देयर इज नो स्टेट. नाउ स्टेट की जब हम बात करते हैं इन पॉलिटी, इट मींस गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब नेशनल गवर्नमेंट. स्टेट डज नॉट मीन कि एमपी राजस्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है. स्टेट मतलब होता है जो गवर्नमेंट होती है उसकी बात कर रहे हैं. तो गांधी और मार्क्स दोनों का एक विजन था कि देयर शुड बी अ सोसाइटी, एक समाज ऐसा होगा कि जहां पे स्टेट ने, फॉर एग्जांपल आप ऐसे इमेजिन करो कि देयर इज इंडिया बट देयर इज नो इंडियन गवर्नमेंट, देयर इज नो इंडियन स्टेट. सब लोग अपने अपने जो लोकल कम्युनिटीज हैं वही सेल्फ सफिशिएंट है और उसी के थ्रू हम काम कर सकते हैं, ठीक है. दैट इज अ स्टेट विदाउट गवर्नमेंट. नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी 2020, डायरेक्ट क्वेश्चन, कि आप कि जो गांधी थे और मार्क्स थे उनके बीच में कॉमन थॉट क्या था, ठीक है. एंड आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, दे थॉट दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इट वाज आस्क्ड फ्रॉम 11th एनसीईआरटी, ठीक है. सो व्हाट वाज द कॉमन थिंग बिटवीन गांधी एंड मार्क्स, बिकॉज मार्क्स जो थे वो रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते थे, वो वायलेंट रेवोल्यूशन को, है ना, बट गांधी नेवर supported any kind of violent revolution. So the common feature between both Marx and Gandhi was that there should be a society without state. Okay. Now उसके बाद क्या होता है, पॉलिटिक्स जो है इट क्लैरिफाइज सर्टेन प्रिंसिपल्स, ठीक है. बहुत सारे आइडियाज होते हैं विच आर नॉट क्लियर बट दे आर क्लैरिफाइड बाय पॉलिटी. फॉर एग्जांपल रूल ऑफ लॉ, ठीक है. रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, देखो ये डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़ लेना यहाँ पे, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी इट, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीलिम्स में आ जाते हैं, ठीक है. सो रूल ऑफ लॉ क्या क्या होता है, एक पहला इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर. एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर मतलब मिडिवल टाइम्स में किंग्स वर सुप्रीम, किंग्स का जो भी मूड हो, अगर राजा जो है उसके अच्छे मूड पे है सो ही विल फॉरगिव यू, अगर बुरे मूड पे है तो ही विल पनिश यू, ही कैन किल यू आल्सो. सो देयर इज नो आर्बिट्रेरी पावर. नाउ जो लॉ है वो कंसिस्टेंट है, लॉ इज सुप्रीम एंड लॉ इज कंसिस्टेंट, कि अगर फॉर एग्जांपल चोरी की सजा 2 साल है तो 2 साल ही रहेगी, इट विल नॉट चेंज, ठीक है. देन इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो वन इज अबव लॉ, ठीक है. पहले क्या होते थे, जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे इन यूरोपियन सोसाइटी, सो दे वर नॉट पनिश्ड और दे वर माइल्डली पनिश्ड. इंडिया में भी जैसे कास्ट सिस्टम थे, तो जो हाईएस्ट थे ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रियास थे, फिर वैश्यास थे, शूद्रास थे, है ना. सो उसपे क्या होता था, या फिर अनटचेबल्स थे, ठीक है. तो जो अनटचेबल्स थे उनको हार्शेस्ट पनिशमेंट थी फॉर द सेम क्राइम, और जो ब्राह्मण्स थे उनको सबसे लाइटेस्ट पनिशमेंट थी. दिस इज नॉट द केस नाउ. So no one, there is absence of arbitrary power, then there is equality before law also, and then finally there is accountable government. जो हमारी सरकार है वो accountable है to you. प्लस देर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. अब जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यूएस में भी सुप्रीम कोर्ट है ना. इंडिपेंडेंट का मतलब होता है दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट फॉर एनीथिंग, दे कैन वर्क ऑन देयर ओन, they can appoint them their own members, है ना. although that is a controversial issue, but they can do that. They are free from finances, they are free from the dependence on of finances from the government. Okay. Then separation of power. जो पावर होती है इट इज नॉट जस्ट इन वन पर्सन, की वही पर्सन जज भी है, वही लॉ भी बना रहा है, वही एग्जीक्यूट भी कर रहा है. सो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर. किस पे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इस पे डिवाइडेड होती है. देन देयर इज जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू सिंपल सा मतलब है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन 2000
2017 एंड 2019 जो जुडिशियल रिव्यू इसकी डेफिनेशन यूपीएससी में, ठीक है। सो इट मेनली सीज द लॉफुलनेस ऑफ डिसीजन और एक्शन, इट कैन रिव्यू द लॉ इटसेल्फ एंड इट कैन ऑल्सो रिवर्स द एग्जीक्यूटिव एक्शंस। इट कैन मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात हो रही है ना। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि सपोज यू आर मेकिंग अ लॉ, ठीक है, बट जो आपका कानून होता है इट इज बाउंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से बाउंडेड होता है। तो इफ इट इज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो जो आपके कोर्ट्स होते हैं दे हैव द अथॉरिटी to declare that law null and void, ठीक है। that is called judicial review, not just law, even executive action, ठीक है। अगर कोई executive action भी है which they feel that it is, for example अभी जैसे बुलडोजर गवर्नमेंट यूज कर रही है to demolish houses, ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि no, this executive action is beyond the scope of law or beyond the scope of government, so they can put a stay on that, ठीक है। देन पॉलिटिक्स इज डायनेमिक, ठीक है। पॉलिटिक्स जो होता है ये स्टैटिक नहीं होता है कि हमने सिर्फ वी हैव जस्ट रेड अबाउट गवर्नमेंट पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, लॉ पढ़ लिया एंड वी आर गुड टू गो। नो, इट इज नेवर लाइक दैट। पॉलिटिक्स इज ऑलवेज डायनेमिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्वेश्चन है कि लाइक शुड देयर बी रिजर्वेशन, इट इज अ पॉलिटिकल क्वेश्चन कि रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं, या स्पेशल फैसिलिटीज टू स्पेशली एबल्ड पीपल, कि अगर आप फॉर एग्जांपल रैंप्स बना रहे हो फॉर स्पेशली एबल्ड, तो इज इट इजंट इट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। फिर पुअर शुड बी प्रोवाइडेड इन इक्वल सोसाइटी, फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी एक स्कीम है जिसपे गवर्नमेंट पुअर लोगों को, गरीबों को 2,000 रुपए देती है, ठीक है, आपको नहीं देती है, आपको नहीं मिल रहा है बिकॉज यू आर नॉट पुअर। सो यू कैन से दैट दिस गवर्नमेंट इज वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, है ना। सो दीज आर ऑल पॉलिटिकल क्वेश्चंस विच जो पॉलिटिकल थ्योरी है इट ट्राइज टू आंसर, ठीक है। देन द क्वेश्चन इज डज इक्वालिटी मींस इक्वल ट्रीटमेंट और फेयर ट्रीटमेंट। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस इन डेप्थ अबाउट व्हाट इक्वालिटी मींस। इट these are all these have been asked in UPSC also, and then all of this is answered by political theory. So ये जो आपके डायनेमिक क्वेश्चंस होते हैं ना, अभी जैसे अभी के डायनेमिक क्वेश्चन क्या चल रहे हैं इन द रिसेंट टाइम्स, जैसे जो पॉपुलेशन लॉ आया है रिसेंटली, कल ही आया है, सॉरी परसों, है ना। So this is also a political question कि whether it should be linked with any religion because political parties are using it, ठीक है। तो these are all dynamic questions are discussed in political theory. इसके बाद अगेन ये दो जो पॉइंट्स हैं ये अगेन यू कैन यूज इन योर GS4 एंड एथिक्स, ठीक है, जिसपे नेल्सन मंडेला इनकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक बुक है जिसपे ये एक जो एपार्थीड सिस्टम था उसके बारे में बात है। व्हाट वाज एपार्थीड? इट वाज अ सिस्टम इन साउथ अफ्रीका जहां पे देयर वाज अ कंप्लीट सेग्रीगेशन बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, कि दे कैन नॉट लिव इन द सेम हाउसिंग सोसाइटी, दे कुड नॉट मैरी विथ ईच अदर, ठीक है, एक स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे। देयर वाज अ कंप्लीट सेग्रीगेशन in South Africa that is called apartheid. Obviously Nelson Mandela he fought against that. Later on he won Nobel also. Then Aung San Suu Kyi, she is obviously Myanmar की leader है, अब again jail में है वो, and she also wrote about freedom from fear, her book in which she said कि जो freedom होती है it is nothing but a dignified life. आपकी dignity intact है, you are living with your keeping your head high, that is all what freedom is, ठीक है। So for both these leaders what they wanted was a free society without fear, बिना किसी डर के जो जी रहे हो, ठीक है, and that is what freedom is. So we will discuss about what is freedom. ये 2000 या तो 18 या 19 का क्वेश्चन है, डायरेक्टली यूपीएससी में पूछा हुआ है। यू कैन आफ्टर दिस क्लास, बिकॉज दिस क्लास विल बी रिकॉर्डेड एंड शेयर्ड, यू कैन गो बैक टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड यू कैन सी दैट सेम दीस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन यूपीएससी। फ्रीडम या लिबर्टी जिसको आप बोलते हैं ना, ये होती क्या है, व्हाट इज इट? अगर आप नैरो सेंस में बात करोगे तो इट इज एब्सेंस ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, दैट इज नो आउटसाइड फोर्सेस लिमिटिंग यू। फॉर एग्जांपल यू वांट टू राइड अ बाइसिकल, आपको एक साइकिल राइड करना है, बट आई से दैट यू कैन नॉट राइड दिस बाइसिकल, सो योर फ्रीडम इज कंस्ट्रेंट, इट इज रिस्ट्रेंट, यू डू नॉट हैव फ्रीडम, ओके। अगर इसको हम हटा देते हैं देन यू हैव फ्रीडम टू राइड बाइसिकल, ठीक है। बट दिस इज द नैरो व्यू ऑफ, यही बच्चे यही लगा के आ गए थे, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, क्योंकि ऑप्शन में ये भी दिया हुआ था और अगली चीज भी दी हुई थी, ठीक है। सो वाइल फ्रीडम इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, इट इज ट्रू, बट इट इज अ नैरो डेफिनेशन। जो इसकी ब्रॉडर डेफिनेशन होती है, इट इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स बट ऑल्सो द कैपेसिटी टू एक्सप्रेस योर पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम राइडिंग दिस बाइसिकल, ठीक है, आप ये साइकिल राइड कर लो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट आपको आता ही नहीं है, देन डू यू हैव द फ्रीडम टू राइड दिस बाइसिकल? ऑब्वियसली देयर इज नो रिस्ट्रेंट
in your life now because I have asked you कि आप ride कर लो bicycle, but you have the absence of capacity, you do not have the capacity to ride that bicycle. ठीक है, तो जो freedom होती है, it is much more than just absence of restraint but the capacity to develop yourself. ठीक है, and become a better person. Then गांधी जी तो जो थे उन्होंने भी बात की थी स्वराज के बारे में. ठीक है, in his book हिंद स्वराज is a most you can say revolutionary book of Gandhi ji. It was the most revolutionary book that he wrote when he was quite young in 1909. ठीक है, so what in Swaraj he meant by Swaraj was कि आप suppose if you want to you want freedom for India, you want Swaraj in India, but do you have Swaraj over yourself? अगर आप you decide कि मैं सवेरे 4 बजे उठना चाहता हूँ, I want to wake up at 4 a.m. but you keep pressing snooze unless it is 9 a.m. So do you have liberty over yourself? Do you have control over yourself? तो जब हम अपने आप से ही नहीं फ्री हैं, we are not free by ourselves, when we are bounded by whims and fancies of our own body, then how can our country be free? Okay, so he said कि पहले self responsibility लो, उसके बाद real freedom की बात करो आप. ठीक है, now are constraints needed? Do are constraints good? मगर अगर आपको if you are stopped from doing something, अगर आपको कोई चीज करने से रोका जाता है, तो is it a good thing or a bad thing? ठीक है, तो सब ये चीज आप समझ लो कि if there will be no restraint in society, then society will descend into chaos and liberty will become license. सिंपल सा मतलब ये कि अगर full liberty है तो anyone can do anything, anyone can punch you, anyone can slap you, anyone can do anything which is beyond the scope of law because they will say we have the liberty to do anything. ठीक है, तो जो अगर restraints नहीं है तो liberty भी नहीं रहेगी. ठीक है, because liberty इसलिए नहीं रहेगी because everyone will be violating the liberty of other people by attacking them. You will consistently live in fear and everything. ठीक है, so that's why what is needed is कि restraints जो है वो important होते हैं society में to maintain the equilibrium of society. So we need constraints. However जो ये constraints होते हैं ये just होने चाहिए और fair होने चाहिए. ठीक है, जो ये constraints है they should be just and fair. फॉर एग्जाम्पल कि यूजुअली जो डिबेट में रहता है कि जो बॉयज हॉस्टल रहते हैं और गर्ल्स हॉस्टल रहते हैं, तो गर्ल्स हॉस्टल में 8 बजे या 6 बजे टाइम कर दिया जाता है कि आफ्टर 6 PM यू कैन नॉट एंटर इनटू गर्ल्स हॉस्टल. बॉयज हॉस्टल में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं रहता है. ठीक है, सो अब यहाँ पे कंस्ट्रेन है, बट इज इट जस्ट एंड फेयर? ठीक है, इट इज these things are always in debate. ठीक है, there are multiple debates in that. So these kind of questions जो political theory है वो pick up करती है. ठीक है, however so यही मैं बोल रहा हूँ कि there cannot be unjustified constraint. जैसे caste system था, ठीक है, it was an unjustified restraint कि you cannot move above the class the caste ladder, you cannot have a better life. ठीक है, तो वो चीजें क्या थी, वो constraint थी. ठीक है, तो जो constraint है what will happen कि sometimes because people जो गवर्नमेंट है वो आपको कंस्ट्रेन करने के लिए कुछ अनफेयर लॉज ले आएंगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज गवर्नमेंट विल ब्रिंग अ लॉ इन व्हिच दे विल से कि क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट मे लीड टू डिस्टेबलाइजिंग द सोसाइटी. ठीक है, तो आप हमको क्रिटिसाइज मत करो, तो एक अनफेयर लॉ ले आएंगी. ठीक है, सो दैट्स वाई जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हमको ओपनली डिस्कस करना चाहिए, पहली चीज. दूसरी चीज, that's why we should be tolerant to opposing views. मतलब कि if someone is has a view which is completely uh, opposed to what we feel, ठीक है, we should be open to such views also. And this is the hallmark of liberalism कि जब आप बिल्कुल ही open रहते हो, when you are completely open to the opposing view, that means you are a liberal society. So अगर दूसरा पर्सन कोई भी जो एक लिबरल सोसाइटी होती है ना, वो कभी भी नेम कॉलिंग नहीं करती है. दे विल नेवर डू नेम कॉलिंग, है ना, जो आज के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिकल स्फीयर पे होता है कि राइट और जो लेफ्ट विंग होता है दे नेम कॉल ईच अदर. ठीक है, बट एक लिबरल सोसाइटी विल लिसन टू इवन द मोस्ट ridiculous statement of other person and they will not ridicule it. That is what जो एक सभ्य समाज जिसको बोलते हैं वो करता है वो चीज. ठीक है, नाउ यहाँ पे तो कंस्ट्रेंट, फिर देन व्हाट शुड बी कंस्ट्रेंट? अगर कंस्ट्रेंट अनफेयर लॉज ला सकता है देन व्हाट शुड बी कंस्ट्रेंट? तो इस पे जेएस मिल ने बोला था देयर शुड बी अ हार्म प्रिंसिपल. सिंपल सा मतलब है कि इफ अ पर्सन is harming another person,
then that person should be constrained. That is the only way in which जो laws है वो होने चाहिए कि unless that person is not harming another person, then there should not be any constraint. So that is what harm principle of JS Mill is. These are all the things that you can use in your GS4 harm principle and everything, because these are mentioned in NCERT also. ठीक है. उसके बाद ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था जेएस मिल का. ही सेड कि देयर आर टू काइंड ऑफ एक्शंस. फर्स्ट इज सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, सेकंड इज अदर्स रिगार्डिंग एक्शन. सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस मींस कि व्हाट यू डू फॉर योरसेल्फ. फॉर एग्जांपल, अगर इफ सम पर्सन इज डूइंग ड्रग्स, ठीक है, तो दिस इज सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कि वो अपने आप को हार्म कर रहा है. सो ही सेड इन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन अ पर्सन शुड हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम. ठीक है. However, फिर यहीं पे क्वेश्चन उठता है कि if someone wants to commit suicide, should we allow that person to commit suicide? And he said कि जो others regarding action होते हैं, कि मतलब जो आपके actions होते हैं which will hurt the other person, in that position क्या होता है, there should be constraint. और वो constraint किसके basis पे होना चाहिए? On the basis of harm, कि that person should not harm any other person. ठीक है. जो हमारा constitution है, that also does not provide for infinite जो freedom है. हमारा संविधान भी इनफाइनाइट फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करता है. सो वो कैसे रेस्ट्रिक्ट करता है? ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. ठीक है. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मतलब कि व्हाटएवर फील के संविधान को लगता है कि these are the reasonable things on which people's restrictions can be put. Obviously we will discuss it in polity classes. तो वो ये करते हैं. ठीक है. संविधान भी ये करता है. अब जो लिबर्टी है, यहाँ तक हमने समझ लिया. अब हम लिबर्टीज की बात करते हैं. ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है यूपीएससी में. जो लिबर्टी होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिबर्टी. ओके, जस्ट अ सेकंड. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिबर्टीज. फर्स्ट इज नेगेटिव लिबर्टी एंड सेकंड इज पॉजिटिव लिबर्टी. ठीक है. इसका सिंपल सा आइडिया आपको समझा देता हूँ कि नेगेटिव लिबर्टी मतलब कि द एरियाज इन विच स्टेट विल नॉट इंटरफियर. ये मतलब ऐसे एरियाज है इन विच यू हैव फ्रीडम, इन विच स्टेट विल नॉट ट्राई टू इंटरफियर. फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, that is a negative liberty. It means कि you have the right to speak whatever you want and state या government जो है it will not stop you from speaking. So that is negative liberty. Positive liberty, it was propounded by Marx and Gandhi, remember. इस पे ऐसा होता है कि जो it forming such conditions that your life become better. तो जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर पॉजिटिव लिबर्टी. फॉर एग्जांपल, अगर मनरेगा स्कीम लाई है गवर्नमेंट, है ना, सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड पीपल. ठीक है. सो दिस इज अ पॉजिटिव लिबर्टी कि इट इज एक्सपैंडिंग योर कैपेसिटी. यू हैव वर्क, यू कैन अर्न मनी एंड यू कैन लीड अ गुड लाइफ. तो नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है? रिस्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट, नॉट ऑन यू. ठीक है. कि जहां पे जो गवर्नमेंट है वो आपके लाइफ पे इंटरफेयर नहीं कर सकती है. पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है? कि उस तरीके की कंडीशंस बनाना सो दैट यू कैन लिव अ गुड लाइफ. ठीक है. तो यहाँ पे आपका जो लिबर्टी है वो दैट चैप्टर इज ओवर. नाउ नेक्स्ट इज इक्वालिटी. जो इक्वालिटी है, इट हैज बीन अ पैशनेट कॉन्सेप्ट. जो सबसे पैशनेट कॉन्सेप्ट रहा है वो इक्वालिटी रहा है. कि हमेशा हम लोग सब लोग चिल्लाते हैं कि हमें इक्वालिटी चाहिए. वी वांट इक्वालिटी, वी वांट इक्वालिटी, वी वांट इक्वालिटी. ठीक है. सो इक्वालिटी का मतलब क्या है? इट सिंपली मींस दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ इक्वल वर्थ. मतलब क्योंकि वो इंसान है, सो दैट्स व्हाई दे हैव अ इक्वल वर्थ, irrespective of their religion, irrespective of their color, irrespective of their gender, or irrespective of their race or nationality. ठीक है. So every person should be treated as equal. Why? Because they are human beings. Simple सी बात है. However, यहाँ पे paradox आता है. What is paradox? कि we all want equality. हम सब, अब जितने भी बच्चों से मैं यहाँ पे पूछूंगा कि do you want equality, each one of you will say yes, we want equality. However, the reality is that we only find inequality everywhere. Even though we want equality, it is only inequality which is everywhere. ठीक है. So we should remember one thing. We have to remember is that equal respect does not means equal treatment. ठीक है. Because a smooth society needs a division of work and functions. It simply means कि जो एक CEO होता है कंपनी का, ठीक है, और सपोज कि एक वॉचमैन है. ऑब्वियसली अगर हम एक एजुकेटेड पर्सन की तरह बात करें तो सोशल हायरार्की में इनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए. बोथ शुड गेट इक्वल रिस्पेक्ट. हाउएवर, जो सीईओ है, क्योंकि इसका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर इसकी सैलरी सपोज 1000 रुपीज है, ठीक है, और वॉचमैन की सैलरी 10 रुपी है, तो यू कैन नॉट से कि दिस इज रॉन्ग, कि सीईओ को इतनी सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, सबको 10 रुपए मिलने चाहिए. ठीक है. क्योंकि हम इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं. वाई? बिकॉज अगर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं रहेगा,
तो अगर इक्वालिटी अगर मैं बोल दूंगा कि सबको बराबर नंबर मिलेंगे, आप तो आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, सो देयर विल बी नो मेरिट इफ देयर इज नो, इफ यू विल नॉट रिवॉर्ड द हार्ड वर्क, ठीक है। सो दैट्स व्हाई डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। हाउएवर जो ये डिस्टिंक्शंस है ना, दे शुड बी एक्सेप्टेबल, लाइक मेरिट। मेरिट एक एक्सेप्टेबल डिस्टिंक्शन है, लेकिन इस पे क्या कहते हैं, इसीलिए इसीलिए हमको क्या होता है कि जो डिस्टिंक्शंस हैं दे शुड बी नेचुरल एंड दे शुड बी नॉट नेचुरल, दे शुड बी एक्सेप्टेबल। एंड मेरिट इज वन ऑफ दोस क्राइटेरिया कि जिसपे हम सब एग्री कर सकते हैं कि इफ अ पर्सन हैज रेड मोर, कोई स्टूडेंट ज्यादा पढ़ के आया है तो उसके अगर 99% आ रहे हैं, एंड इफ सम पर्सन हैज रेड लेस और उनके 41% आ रहे हैं, तो यू कैन नॉट इक्वलाइज बोथ मार्क्स, है ना, क्योंकि दैट विल बी रॉन्ग विद दिस पर्सन, ठीक है। तो इक्वालिटी मतलब ब्लाइंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एवरीवन, दैट इज नॉट व्हाट इक्वालिटी इज, ठीक है। अब डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी में पहली चीज होती है वो होती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि स्टार्टिंग लाइन जो होती है, स्टार्टिंग लाइन दैट शुड बी सेम फॉर एवरीवन। अगर आप रिले रेस देखोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो अंदर वाला रनर होता है वो बहुत पीछे से स्टार्ट करता है, और जो बिल्कुल आउटसाइड द क्या कहते हैं सर्कल के पास जो रहता है रनर, वो काफी आगे से स्टार्ट करता है। व्हाई? बिकॉज सर्कल का सर्कमफेरेंस ऐसा होता है कि इसके लिए कम होता है, उसके लिए ज्यादा होता है। सो टू क्रिएट इक्वालिटी दिस इज डन। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वो सबके लिए सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली दैट इज नॉट द केस इन इंडिया। एक कोई वुमेन है या कोई दलित है, ठीक है, ऑब्वियसली दे हैव suffered a lot socially also, economically also, so they had different kind of हम लोग तो majority of us can have a very good life, we have laptops, we have access to good education, we have access to English medium schools, so we can start, we can compete. But do you think a person who has struggled whole their life, somehow they have got graduation, they will be in the equal footing with us during the examination? Obviously not. That's why जो equality of opportunity है, it calls for affirmative action, ठीक है। affirmative action मतलब कि special treatment should be given to those people who have suffered because of the historical injustices or any other reason, ठीक है। इसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बाद एक्सट्रीम फॉर्म जो होता है इक्वालिटी का, उसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ आउटकम विच इज नॉट डिजायरेबल। इट सिंपली मीन्स कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू विल डू, रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है। तो अगर आप जितना भी पढ़ रहे हो, हर स्कूल में हर बच्चे के अगर मैं बोल दूंगा कि 60% आने वाले हैं, तो दैट विल बी इक्वालिटी ऑफ आउटकम, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट डिजायरेबल, नो वन विल वांट दिस काइंड ऑफ इक्वालिटी, बिकॉज देन you have no incentive to work hard. Then there are equalities, नेचुरल एंड सोशल इक्वालिटीज। नेचुरल इक्वालिटीज मतलब होता है कि लोगों की कैपेबिलिटीज, चॉइसेस अलग होते हैं, है ना। सम पीपल आर टॉलर, सम पीपल आर शॉर्टर, कुछ थोड़े ज्यादा वजन वाले होते हैं, थोड़े कम वजन वाले होते हैं, some have light skin, some have dark skin, है ना। some are more skilled than other, that is called natural inequality, ठीक है। तो नेचुरल इक्वालिटी ऑब्वियसली अनअवॉइडेबल है, you cannot avoid it. Then there is something called social inequality. Social inequality मतलब जो समाज बनाता है, ठीक है। So ये जो होती है ये अवॉइडेबल होती है, बिकॉज दिस इज नॉट नेचुरल, इट इज फॉर्म्ड बाय सोसाइटी। एंड जो अगर ये बहुत समय तक रहे, बहुत समय तक यूज किया जाए, तो जो सोशल इनइक्वालिटी है ना वो नेचुरल इनइक्वालिटी ही बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन आर कॉल्ड वीकर सेक्स या फेयरर सेक्स। इवन अब नाउ द कॉन्शियसनेस हैव रेज्ड, तो अब ये चीज हटने लगी है। बट अर्लियर ऑल्सो जो न्यूज़पेपर्स होते थे, when they used to mention women, they used to say कि so the weaker sex या fairer sex are doing the such thing, ठीक है। So because social inequality is so ingrained in us that we do not even think is saying someone weaker sex is wrong. Obviously you cannot say someone is weaker or stronger on the basis of just gender, ठीक है। सिमिलरली जो आज के टाइम पे नेचुरल इनइक्वालिटी है, दैट इज आल्सो नॉट समथिंग व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड। अब स्पेशली एबल्ड जो पीपल, इफ दे कैन नॉट हियर, दे हैव हियरिंग डिवाइसेस, ठीक है, एड डिवाइसेस, अब सब चीजें हैं। तो ऐसा आज के टाइम पे विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इक्वालिटी है, इट कैन बी अचीव्ड both in natural sphere also and in social sphere also with the progress of society, ठीक है। तो अब इन डिस्कशन के बाद आप ये देख सकते हो कि जो आइडिया ऑफ इक्वालिटी है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसके अलावा और कुछ डायमेंशन हम इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो पहला होता है पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये आपका यूपीएससी के हिसाब से, मतलब इन द सेंस कि प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, वेट, जस्ट
अगेन आई विल शेयर द स्क्रीन अदरवाइज। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है कि आपको पॉलिटिकल राइट सबको बराबर मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे इक्वल सिटीजनशिप, हम सब इक्वल है सिटीजनशिप में। इक्वालिटी बिफोर लॉ, वी ऑल हैव इक्वल, हम लॉ के सामने हम सब बराबर हैं, किसी को कम या ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। एंड देन वी ऑल हैव राइट टू वोट, राइट टू रन इन इलेक्शंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब क्या है? दे आर पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है, दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, अगर पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं होगा तो दूसरी इक्वालिटीज एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फंडामेंटली वी हैव टू एक्सेप्ट इक्वालिटी इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, दूसरा होता है सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी मतलब फेयर अपॉर्चुनिटी टू compete फॉर गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जांपल यूपीएससी, तो यूपीएससी में एवरीवन शुड बी एबल टू compete इन दिस एग्जाम। ठीक है, देन देयर इज अ गारंटीड सर्टेन मिनिमम कंडीशंस ऑफ लाइफ, जैसे आपका यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात चल रही है ना। सो सोशल इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो लोग हैं उनका सोशल नीड्स जो है ना, दैट इज मेट थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स या इन जनरल जो सोसाइटी होता है उसके थ्रू। फॉर एग्जांपल राइट ऑफ इनहेरिटेंस टू वुमेन, पहले जो वुमेन थे उनको इनहेरिटेंस का राइट नहीं था, दे डिड नॉट हैड द राइट कि दे कुड इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, लेकिन अब है। एंड फाइनली देयर इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। देखो, इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता, अगेन एज आई सेड, कि जो सीईओ है और जो क्या कहते हैं वॉचमैन है उनकी बराबर सैलरी होनी चाहिए, बट जो डिफरेंस है, इट शुड नॉट बी सो ह्यूज दैट बोथ आर लिविंग इन सम डिफरेंट लाइफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो रिच मैन है वो किसी दूसरी दुनिया में जी रहा है और जो पुअर मैन है वो दूसरी दुनिया में जी रहे हैं ना। बिकॉज इफ देयर विल बी सच अ स्टार्क इनइक्वालिटी, then that society will not be stable, there will be a violent struggle in that society। ठीक है, so that's why we should maintain कि जो people living below poverty line है, they should be very very few। ठीक है, because inequality may lead to resentment and violence। अब कुछ आइडियोलॉजीज की बात कर लेते हैं कि आइडियोलॉजीज रिलेटेड टू इक्वालिटी। ओके, आइडियोलॉजीज जो पहली है इक्वालिटी की बात करती है वो है फेमिनिज्म। सिंपल सी बात है, जो फेमिनिज्म है वो ये बोलती है कि जो मेन है और वुमेन है दोनों के इक्वल राइट होने चाहिए। और पैट्रियार्की जो होती है, जिसको पितृसत्ता बोलते हैं, इट सिंपली मींस कि जो हमारा सिस्टम है, पैट्रियार्की सिंपली मींस कि जो हमारा सिस्टम है, इट फेवर्स मेन। ठीक है, अब वो सिस्टम चाहे सोशल सिस्टम हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम हो, तो दैट शुड नॉट बी द केस। देयर शुड बी फेमिनिज्म, दे से दैट वुमेन और जो मेन है उनके बीच में इक्वल राइट्स होने चाहिए। एंड देन दे से देयर शुड बी नो पब्लिक एंड प्राइवेट डिवाइड। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट डिवाइड का मतलब ये कि स्टेट ये बोलता था कि जो आपकी पब्लिक लाइफ है, देखो एक तो लाइफ होती है जो आप घर के अंदर जीते हो, ठीक है, दैट इज योर प्राइवेट लाइफ। एक लाइफ होती है जो आप घर से जब बाहर निकलते हो तब जीते हो। तो स्टेट जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि वी विल कंट्रोल योर पब्लिक लाइफ बट वी विल नॉट कंट्रोल योर प्राइवेट लाइफ, है ना। हाउएवर जो फेमिनिस्ट है वो बोलते हैं पर्सनल इज पॉलिटिकल, मतलब कि जो पब्लिक प्राइवेट, क्योंकि घर के अंदर अगर सपोज एक हस्बैंड है, दे आर बीटिंग देयर वाइफ, ठीक है, वो अपनी वाइफ को मार रहे हैं, ठीक है, या डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं या डाउरी का प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो स्टेट कैन नॉट से कि ओके वी दैट आपका घर का मामला है, वी कैन नॉट इंटर इनटू योर होम। ठीक है, सो जो फेमिनिस्ट है वो बोलते हैं देयर शुड बी नो पब्लिक एंड प्राइवेट डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट जो आइडियोलॉजी है इक्वालिटी की वो सोशलिज्म है। जो फेमिनिस्ट है वो आप बोल सकते हो कि सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं कि मेन और जेंडर में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सोशलिस्ट जो है ये इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है, सो दे से कि इक्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिबर्टी एंड देन स्टेट शुड हैव अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जो स्टेट के जो समाज में लोग रह रहे हैं उनका एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन्ड रहना चाहिए एंड दैट शुड बी मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड फॉर दैट गवर्नमेंट शुड कंट्रोल एसेंशियल रिसोर्सेज। तो टिल 1991 वी वर फॉलोइंग द सेम सोशलिस्ट मॉडल की, जहां पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज थी या इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल गुड्स थे वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। ठीक है, एंड देन फाइनली लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जो है इट इज ये इक्वालिटी, इट फेवर्स इक्वालिटी बट वो लिबर्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, वो ये बोलता है कि देयर शुड बी अ फेयर एंड ओपन कंपटीशन, कि मतलब सपोज यूपीएससी का एग्जाम है तो लेट एवरीवन compete एंड द बेस्ट वन विन, दैट इज द बेस्ट वे टू इंश्योर इक्वालिटी। ठीक है, बट वो फिर ये बोलेंगे कि रिजर्वेशन मत रखो आप। ठीक है, लेट एवरीवन compete एंड जब सब compete करेंगे व्हेन देयर इज एन ओपन कंपटीशन दैट इटसेल्फ विल रिड्यूस इनइक्वालिटी। ठीक है,
जो सोशलिस्ट हैं वो इससे एग्री नहीं करते हैं। दे बिलीव कि जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी है, मतलब जो आपका पॉलिटिकल लाइफ है, जो आपकी इकोनॉमिक लाइफ है और जो आपकी सोशल लाइफ है, इट इज लिंक्ड। क्योंकि अगर आप पॉलिटिकली वीकर हो तो सोशली भी वीकर होगे, इकोनॉमिकली भी वीकर होगे। जबकि लिबरल्स हैं, दे डू नॉट बिलीव इन दिस। दे बिलीव कि इकोनॉमिक इक्वालिटी अलग है, सोशल इक्वालिटी अलग है, और ये दे डू नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिबरल्स एंड सोशल्स। नाउ, अब we have discussed the dimensions of equality. Now how do we achieve equality? इक्वल समाज की तरफ हम कैसे जाएं? ठीक है, तो इसको हम करने के लिए पहली चीज फॉर्मल इक्वालिटी। फर्स्ट वी विल हैव टू एक्सेप्ट दैट वी वांट इक्वालिटी। अगर कोई समाज ये बोल देता है कि वी डू नॉट इवन वांट इक्वालिटी, देन व्हाट इज द पॉइंट? ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू एटलीस्ट एक्सेप्ट सम काइंड ऑफ इक्वालिटी। और हमारा जो आर्टिकल 17, 18 है, इवन आर्टिकल 15, 16, 17 एंड 18, ये फॉर्मल इक्वालिटी स्टैब्लिश करते हैं। 14 ऑल्सो, इट सिंपली मीन्स कि वी वांट अ सोसाइटी विच शुड बी इक्वल। ठीक है, पहले ये फंडामेंटल प्रिंसिपल हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेकेंड वे इज डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब ये कि ऑब्वियसली नॉट एवरीवन इज इक्वल। ठीक है, तो अगर रैंप्स आप बना रहे हो स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए, हुआ जो चल नहीं पा रहे हैं, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक है, या अगर कोई वुमेन है जो रात में काम कर रही है किसी ऑफिस में, अगर आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, सो यू कैन नॉट से कि व्हाई आर यू प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू दैट वुमेन, व्हाई आर नॉट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू अस, बिकॉज ऑब्वियसली जो वुमेन है उनको ज्यादा खतरा होता है ऑफ सोशल वायलेंस। तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज, फर्स्ट इज फॉर्मल इक्वालिटी, सेकंड इज डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, एंड थर्ड इज अफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, जैसे रिजर्वेशन हो गया, स्कॉलरशिप्स हो गई, एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटीज, माइनॉरिटी कम्युनिटीज, वुमेन के लिए स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो यू कैन नॉट से दैट इट इज वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो तीन तरीके से आप इक्वालिटी अचीव कर सकते हो: फॉर्मल इक्वालिटी, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड अफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज जस्टिस। अब जस्टिस क्या होता है? देखो, जब आप जस्टिस की बात करते हो ना, तो जब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो जस्टिस आप कोर्ट मत सोचो कि जो कोर्ट जो जजमेंट देते हैं दैट इज कॉल्ड जस्टिस। नो, इट इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ लीगल जस्टिस। ठीक है, तो जस्टिस का मतलब क्या होता है फिर? अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट की बात करो तो इसका मतलब होता है होल्डिंग धर्मा। नाउ व्हाट इज होल्डिंग धर्मा? सी, रिमेंबर, जो धर्म है ना, इट इज नॉट रिलीजन। रिमेंबर दिस थिंग, धर्म इज नॉट रिलीजन। there is no equivalent term in English dictionary which can define what dharma means. ठीक है, बट अगर आप बहुत ही, मतलब मैं बहुत नैरो सेंस में बोल रहा हूँ, बट नैरो सेंस पे धर्मा का मतलब होता है जस्ट सोशल ऑर्डर। जो हमारा सामाजिक ऑर्डर है, अगर आप उसको मेंटेन करके रखते हो, देन यू आर फॉलोइंग धर्मा। सो इन इंडियन कंटेक्स्ट जस्टिस मीन्स फॉलोइंग होल्डिंग धर्मा। ठीक है, कॉन्फ्यूशियस जो है, ही वाज अ चाइनीज फिलोसफर, उन्होंने कहा कि जो जस्टिस का मतलब होता है कि जब किंग पनिश करता है रॉन्ग डूअर्स को और वर्चुअस को रिवॉर्ड करता है। मतलब इफ यू आर अ बैड पर्सन यू विल बी पनिश्ड, इफ यू आर अ गुड पर्सन यू विल बी रिवॉर्डेड। सो इट इज अ वेरी बेयर मिनिमम बेसिक डेफिनेशन ऑफ जस्टिस। उसके बाद प्लेटो। So Plato, he elaborately discussed justice with the help of Socrates. Socrates थे teacher थे Plato के, and what he meant, he said is कि justice means to do well of all people. ठीक है, जो हर इंसान का बेहतरी करना ही जस्टिस होता है। If you are doing good for everyone, you are being just, you are doing justice। ठीक है, जो जस्टिस है इसकी क्वेश्चन पूछ चुका है GS4 में कई बार। ठीक है, so it is done by giving people their due। जो पर्सन जो चीज डिजर्व करता है, इफ यू आर गिविंग दैट थिंग टू दैट पर्सन, दैट सिंपली मीन्स कि यू आर बीइंग जस्ट। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी डिस्कस किए थे, जस्टिस के प्रिंसिपल क्या होते हैं? पहला होता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल। देखो, इसका बिल्कुल उल्टा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल्स। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल का मतलब ये होता है कि ऑल जो पीपल हैं, दे शुड बी treated equally and not discriminated on the basis of class, caste और gender। ठीक है, क्लास के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। ठीक है, हाउएवर कुछ चीजें को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, देन सेकंड प्रिंसिपल है द जस्टिस शुड बी प्रोपोर्शनेट। सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई चोरी कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप उसको फांसी पे सर चढ़ा दे रहे हो, ऑब्वियसली दैट इज नॉट प्रोपोर्शनेट जस्टिस, क्योंकि जो उसने क्राइम किया है that does not deserve the punishment कि you should kill him or you should hang him in क्या कहते हैं prison। ठीक है, तो जो जस्टिस है दूसरी चीज क्या है? it should be proportionate to the crime that you are committing। ठीक है,
देन थर्ड इज रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड. इट सिंपली मीन्स कि जो बोथ जो ऊपर के जो ये दो प्रिंसिपल है ये फॉलो करना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिसएडवांटेजियस पीपल. ठीक है, सिंपल सा इसका मतलब है. फॉर एग्जाम्पल कि ये इक्वालिटी में भी वो कर सकते हैं. जैसे मैंने पहले इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज कि इफ समवन इज, अगर कोई थीफ है, और जैसे कई कंट्रीज में भी होता है कि जो थीफ है उसको 30 कोड़े या 30 लैशेस की सजा है. ठीक है, अब आप सपोज कि एक 30 साल का आदमी और एक 6 साल की बच्ची, इफ दे आर स्टीलिंग अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, तो अगर आप उनको 30 लैशेस मारोगे तो हो सकता है 30 इयर्स का आदमी में भी 1-2 days ही विल बी इन पेन, देन ही विल रिकवर. बट जो 6 साल की बच्ची है, शी विल डाई बिकॉज ऑफ दैट. तो डू यू वांट इक्वल ट्रीटमेंट इन दिस केस? ऑब्वियसली नॉट, है ना. सो यू शुड रिकॉग्नाइज द स्पेशल नीड्स, एंड दैट्स इट. दिस इज वेयर यू कैन वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि जैसे इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स, प्रोपोर्शनेट जस्टिस और रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, दीज थ्री आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर. ये तीनों आइडियाज एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट करते हैं. ठीक है, एंड दैट्स वाई जो एक स्टेट होता है, जो एक अच्छी गवर्नमेंट होती है, इट मैनेजेस ऑल द थ्री प्रिंसिपल्स केयरफुली. जो एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इन तीनों प्रिंसिपल को मैनेज करती है. ठीक है, नेक्स्ट इज रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस. ये आपका यूपीएससी जीएस 4 का डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंड मेनी पीपल डिड नॉट इवन नो व्हाट इज रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस. ठीक है, तो ये पूरी थ्योरी है, इसको मैं बहुत सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है, इंस्टेड फिर ये आप पढ़ लेना अपना. इस पे रॉल ये बोलता है कि सपोज ये इंडिया है. ठीक है, आई एम जस्ट वेरी वेरी इन अ वेरी क्रूड मैनर आई एम एक्सप्लेनिंग कि सपोज ये इंडिया है और यू आर लिविंग इन दिस. आप यहाँ पे हो, जब आप क्रॉस करोगे इस लाइन को तो आप इंडियन बन जाओगे. ठीक है, यू विल बिकम एन इंडियन सिटीजन. ठीक है, बट राइट नाउ यू आर वन पर्सन. आपका कोई नाम नहीं है. जैसे सपोज यहाँ पे किसी का नाम आकाश है, किसी का नाम एलिना है ना, बट यू डू नॉट हैव एनी नेम, यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर जेंडर. तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट वो आपसे ये चीज इमेजिन करने को बोलता है. ठीक है, कि सपोज कि आपको नहीं पता है कि आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, व्हाट इज योर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज योर कास्ट स्टेटस, व्हाट इज योर नेशन स्टेटस, आपको कुछ भी नहीं पता है. ठीक है, सो यू आर इन द वेल ऑफ इग्नोरेंस. वेल मतलब होता है पर्दा करना. तो आप एक ऐसा पर्दा पहने हुए इग्नोरेंस का, इन विच यू डू नॉट नो व्हाट योर पोजीशन विल बी व्हेन यू विल एंटर इनटू इंडिया. कि सपोज कि आप यहाँ पे अगर इंडिया में इंटर करोगे तो आप हो सकता है मुकेश अंबानी निकलो. ठीक है, कि आप मुकेश अंबानी, आप करोड़पति निकलो, या हो सकता है कि आप एक दलित वुमेन निकलो. यू डू नॉट नो कि आप एक दलित वुमन निकलोगे. तो यहाँ पे आप क्या प्रिंसिपल डिसाइड करोगे जस्टिस के? तो यहाँ पे रॉल बोलता है कि यू विल डिसाइड कि जो वीकेस्ट होगा, मतलब वीकेस्ट इंडिया में कौन हो सकता है? एक ट्राइबल वुमेन है ना, दैट कैन बी वीकेस्ट पर्सन. दे विल बी बेटर ऑफ. मतलब कि हम स्टेट जो है वो ऐसा सिस्टम बनाएगा कि दे शुड बी बेटर ऑफ. कि उनके लिए अगर हम ट्राइबल वुमेन को स्कॉलरशिप देते हैं या उनको हम रिजर्वेशन देते हैं, तो आप एग्री करोगे इस पोजीशन पे? यू विल एग्री, यू विल से यस, बिकॉज वी डू नॉट नो. अगर हम ट्राइबल वुमेन निकल गए तो जो वर्स्ट पर्सन है दे शुड बी बेटर ऑफ. एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो डिसाइड कि जो बेस्ट पर्सन है दे शुड नॉट बी वर्स्ट ऑफ. इसका मतलब ये कि अगर आप अंबानी निकल गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट आपको 90% टैक्स लगा सकती है आप पे, है ना. सो यू विल ऑल्सो थिंक कि जो रिच लोग हैं उन पे भी इतना ज्यादा बर्डन नहीं आना चाहिए. ठीक है, सो एट दैट पॉइंट द प्रिंसिपल दैट यू विल डिसाइड आर दीज टू. मतलब प्रिंसिपल दूसरे हैं जो रोल बताते हैं, बट सिंपल प्रिंसिपल यही है कि जो वीकेस्ट है दे शुड बी बेटर ऑफ, and the best should be not be worse off. ठीक है, and that is what Rawls theory of justice is. और जब आप सोसाइटी पे इंटर करोगे तो यू शुड एग्री कि हाँ, इवन इफ यू आर बेटर ऑफ, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं यार उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू वर इन हर पोजीशन और व्हेन यू वर इन वेल ऑफ इग्नोरेंस, यू योरसेल्फ सेड कि हाँ सर ये सही प्रिंसिपल्स हैं, यू एग्रीड विद दैट प्रिंसिपल. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दैट इज द आइडिया कि जिस पे वो बोलते हैं कि जो जस्टिस होता है इट इज अ फेयरनेस. फेयरनेस मतलब कि सबके साथ एक फेयर ट्रीटमेंट करता है, विच वी केम थ्रू रैशनल प्रोसेस. हमने जो जस्टिस की इक्वालिटी जो भी हमने डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस की जस्टिस की, वी रैशनली डिस्कस्ड इट. हमने ये, मैंने आपको मोरालिटी के उस पर नहीं बोला कि देखो बेचारी गरीब ट्राइबल वुमन है, वी शुड हेल्प हर, वी शुड हैव बेटर सिचुएशंस फॉर हर. ऐसा तो कोई मोरालिटी का एस्पेक्ट तो मैंने दिया ही नहीं आप लोगों को, है ना. So what I gave was a very rational process, and that is what Rawls also gave. Okay.
नाउ नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस, अ वे अहेड। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? सामाजिक न्याय, ठीक है। सो हमारी जो सोसाइटी, स्पेशली जो इंडियन सोसाइटी है, इट इज वेरी वेरी अनइक्वल, बहुत ज्यादा अनइक्वल सोसाइटी है, ठीक है। सो इन दिस सोसाइटी वी नीड अ लॉट ऑफ, वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग टू ब्रिंग इनइक्वालिटी, ठीक है। अब इस पे दो व्यूज होते हैं, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी पे। पहला होता है फ्री मार्केट, और दूसरा होता है स्टेट इंटरवेंशन, ठीक है। आप ये समझ लो कि प्री 1990 जो इंडिया था वो ये था, अब वाला जो इंडिया है वो ऑलमोस्ट ये है, ठीक है, फ्री मार्केट। ये इसके ये हम मार्केट का बात कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं दे शुड बी फ्री टू compete विद ईच अदर, एंड वट एवर आउटकम विल कम दैट विल बी फेयर। सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, लेट देम compete विथ ईच अदर, और जो सबसे बेस्ट कंपनी होगी वो अपने आप जीत जाएगी। वी आर नॉट इंटरफियरिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्री मार्केट। लेकिन स्टेट इंटरवेंशन जो आइडिया है, तो ये जो लिबरल्स है उनका ये आइडिया रहता है फ्री मार्केट का, ठीक है। लेकिन जो स्टेट इंटरवेंशन, ये सोशलिस्ट का आइडिया होता है। इस पे वो ये बोलते हैं कि स्टेट जो है दे शुड कंट्रोल सर्टेन सर्टेन जो पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड है, ठीक है। अब अगर आप फ्री मार्केट कर दोगे फूड पे, तो ऑब्वियसली फ्री मार्केट में एवरीवन विल हैव टू पे फॉर फूड। लेकिन फूड तो एक बेसिक नेसेसिटी है ना। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड फूड, सो शैल शुड दे डाई। तो जो स्टेट इंटरवेंशन है वो ये बोलता है कि जो कुछ जगह है वहां पे सेंटर, जो स्टेट है, सॉरी गवर्नमेंट है, उसको मार्केट को कंट्रोल करना चाहिए, एंड दैट इज नॉट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, ठीक है, स्पेशली टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो अगर गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन दे रही है अंदर आरटीई, या मनरेगा चला रही है, या पीएम किसान दे रही है, जिसपे 6,000 रुपीज पर ईयर किसान को दिया जाता है, तो दिस इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज दे आर सो वीक इन देयर इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर, कि वहां पे जो सरकार है उसको दे हैव टू हेल्प दोज पीपल, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है राइट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्सक्यूज मी डायरेक्ट, सर। हाँ जी, प्लीज आफ्टर दिस क्लास, मतलब जब ये क्लास ओवर हो जाएगी देन वी कैन डिस्कस द क्वेश्चंस, है ना। ओके ओके सर। हाँ जी। अब नेक्स्ट है राइट्स। राइट्स, ये जो पहली लाइन है विच आई विल बी डिस्कसिंग, दिस हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी, आई थिंक 2017 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ व्हाट इज राइट्स? राइट्स इज फर्स्ट एन एंटाइटलमेंट एंड अ लेजिटिमेट क्लेम दैट एन इंडिविजुअल आस्क फ्रॉम सोसाइटी और स्टेट, ठीक है। सिंपल सा मतलब है कि जो आपका लेजिटिमेट क्लेम, फॉर एग्जाम्पल यू से कि आई वॉन्ट एजुकेशन, ठीक है। तो ये क्या है? आप बोल रहे हो कि मेरे को पढ़ना है, आई वांट एजुकेशन, तो ये क्या है? एक एंटाइटलमेंट है। यू फील दैट यू आर एंटाइटल्ड टू गेट एजुकेटेड, एंड देन आप क्लेम कर रहे हो, एंड इट इज अ लेजिटिमेट क्लेम, ठीक है। इलेजिटिमेट क्लेम क्या होगा कि आपको चाहिए कि मेरे को गन चाहिए, AK-47, obviously that is not a legitimate claim, but here it is a legitimate claim that you want something from state or society, ठीक है। that is what rights is, that this is the definition that UPSC asked, ठीक है। However, remember there is a difference between what I want and what I am entitled to. For example, I want personal helicopter for myself. ठीक है, so am I entitled for that? Obviously I'm not entitled for that, but Prime Minister of India is, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा entitlement होता है, that is our basic needs, कि अगर मेरे को खाना चाहिए, if I want food, if I want work, if I want education, that is my entitlement, ठीक है। but if I want AK-47 rifle, that is not my entitlement, ठीक है। so there is a difference between what I want and what I am entitled to, ठीक है। now where do rights come from? rights आते कहाँ से हैं, ठीक है। very beautifully explained in NCERT. there are different theories. जो सबसे पुरानी थ्योरी थी, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे डिवाइन होना चाहिए, that was divine rights theory. जो सबसे अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ राइट है, उस पे ये बोलते थे कि जो भगवान होते हैं, गॉड होते हैं, दे हैव गिवन अस राइट,
एंड सो जो क्या कहते हैं राइट्स कम फ्रॉम गॉड, गॉड हैज गिवन अस ऑल द राइट्स, ठीक है। बट लेटर ऑन जब रैशनैलिटी डेवलप हुई तो देन केम नेचुरल राइट्स ऑफ थ्योरी। उसका मतलब ये होता है कि जो पीपल हैं, गॉड डज नॉट गिव देम राइट, दे आर बॉर्न विथ इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल योर राइट टू लाइफ, आपको जिंदा रहने का अधिकार है, तो दैट इज नॉट बिकॉज गॉड हैज आस्क्ड यू टू कि आप जिंदा रहो, बट बिकॉज बाय द नेचर की यू वर बॉर्न एंड यू हैव द राइट टू लिव, ठीक है। नो वन कैन टेक अवे योर लाइफ, यू कैन नो वन कैन किल यू, ठीक है। यू हैव द राइट कि यू शुड लिव, ठीक है। तो दैट इज नेचुरल राइट। सो राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी एक्चुअली ये लॉ के का था, बट मेनली कि यू आर एंटाइटल्ड टू देम। एंड देन अभी जो प्रेजेंट का चल रहा है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन राइट्स थ्योरी, कि यू आर एंटाइटल्ड टू राइट्स बिकॉज, सिंपली बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आप एक इंसान हो, क्योंकि आप एक जिंदा इंसान हो, दैट्स व्हाई यू डिजर्व राइट्स, नो अदर डिबेट और डिस्कशन इन दैट, ठीक है। ये जो थे एक बहुत बड़े फिलोसफर थे जिनका नाम था इमैनुअल कांट। सी ये जो मैं फिलोसफर्स के नाम ले रहा हूँ ना, दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव बीन गिवन इन एनसीईआरटी इटसेल्फ, ये मैं खुद से सोच के नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट। सो इमैनुअल कांट ने बोला था कि जो हर इंसान है उसकी एक डिग्निटी होती है एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट डिग्निटी। सो ह्यूमन राइट्स थ्योरी मींस कि आपको कोई ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता है, आपको कोई इस तरीके से ह्यूमिलिएट नहीं करे कि आपको बुरा लगे। सो यू हैव टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ वन इंडिविजुअल, ठीक है। तो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, दे आर आल्सो बेस्ड ऑन दिस। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स, तो पहला होता है लीगल राइट्स, ये सबसे सिंपल है। लीगल राइट्स मतलब कि जो कानून के थ्रू, लॉ के थ्रू आपको मिलते हैं, ठीक है। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू एजुकेशन, दीज आर ऑल योर लीगल राइट्स, ठीक है। सो दीज आर कोडिफाइड, कोडिफाइड मतलब रिटन इन लॉ, ठीक है। इंडिया में आपके लीगल राइट्स जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो हो गए, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आई फील, या 36 जो भी है, ठीक है। एंड देन जो आपके स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी मतलब होता है बाय लॉ, ठीक है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब आपके लीगल राइट्स हो गए। दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो राइट्स होते हैं लीगल राइट्स, दे आर योर क्लेम फ्रॉम स्टेट, ठीक है। ये आप स्टेट से मतलब गवर्नमेंट से क्लेम करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन, जिसपे स्टेट के पास ये ऑब्लिगेशन है कि दे विल हैव टू प्रोवाइड एजुकेशन टू यू, ठीक है। तो राइट्स जो है, दे नॉट ओनली टेल्स अस व्हाट स्टेट मस्ट डू, बट आल्सो व्हाट इट शुड नॉट डू, ठीक है। जो नेगेटिव राइट हमने बात की थी, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल इट के आप घूम रहे हो, आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, तो पुलिस उठा के आपको बंद नहीं कर सकती है जेल पे, है ना, बिकॉज यू हैव सर्टेन राइट्स। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ राइट्स। टाइप्स ऑफ राइट्स में तो पहला लीगल राइट हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा है पॉलिटिकल राइट। ये हमने फिर से डिस्कस किया, फिर से कर लेते हैं। पॉलिटिकल राइट मीन कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, यू हैव राइट टू वोट एंड यू हैव राइट टू गेट इलेक्टेड, मतलब आप एमपी एमएलए बन सकते हो, ठीक है। दीज आर ऑल योर पॉलिटिकल राइट्स। देन यू हैव सिविल राइट्स। सिविल राइट्स को लिबर्टीज भी बोलते हैं, कि यू हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू डिसेंट, यू हैव राइट टू क्रिटिसाइज दिस गवर्नमेंट। सो दीज आर ऑल कॉल्ड सिविल राइट्स। तो जो आपके पॉलिटिकल राइट्स होते हैं प्लस जो आपके सिविल राइट्स होते हैं, दीज आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक, जो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, उसका फाउंडेशन होते हैं दीज टू, ठीक है। इसके बाद आपके इकोनॉमिक राइट्स आते हैं। इकोनॉमिक राइट्स क्या होते हैं कि जिसपे योर बेसिक जो नीड्स हैं, जैसे कि फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, दे आर मेट, दोज आर कॉल्ड इकोनॉमिक राइट्स। एंड देन फाइनली कल्चरल राइट्स। कल्चरल राइट्स जो होते हैं मतलब कि आपकी जो मदर टंग है या इंस्टीट्यूशन उनको प्रोटेक्ट करना, which are protected under article 29 and 30 of constitution. This we will discuss in constitution, basically to protect your culture, ठीक है। now when rights come, they come with responsibility। जब आपके पास rights आते हैं तो आपके पास responsibility भी आती है, ठीक है। क्या responsibility आती है? they should compel us to not just think about us but common good। for example clean air और ozone, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेक है, ठीक है, एक लेक है एंड यू हैव द राइट कि आप वहां से जाके पानी पी सकते हो, तो इट ऑल्सो कम विथ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको आप ड्यूटी बोल सकते हो, है ना। गांधी जी ऑल्सो सेड दिस थिंग कि अगर तो इस लेक को साफ करना आपकी ड्यूटी है, ठीक है। तो राइट कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन आई शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स। अगर मेरे को नहीं पसंद है कि समवन स्टॉप्स मी फ्रॉम डूइंग समथिंग, देन आई शुड ऑल्सो नॉट स्टॉप अदर पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। एंड देन तीसरा जो सिटीजन है, दे शुड बी विजिलेंटेड अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस बीइंग प्लेस्ड ऑन देयर राइट्स। जो स्टेट होती है, गवर्नमेंट होती है, बाय द वर्च्यू ऑफ की जिस तरीके की वो होती है, दे विल ट्राई टू ऑलवेज कंस्ट्रेन द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स। सो इन सच कंडीशन जो इंडिविजुअल्स होते हैं, दे शुड बी वेरी वेरी विजिलेंट दैट देयर राइट्स शुड नॉट बी curtailed बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो दिस इज जो आपका राइट्स है वो। नेक्स्ट इज सिटीजनशिप।
सिटीजनशिप से अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी आ सकते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि सपोज यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, व्हाट डज इट मीन कि यू आर इंडियन, हम इंडियन है, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि वी आर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का हम जो है इंडियन स्टेट के पार्ट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके पार्ट, ठीक है। सो सिंस वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी एक्सपेक्ट सर्टेन राइट्स एंड हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि जब हमको जरूरत पड़ेगी तो जो सरकार है वो हमको सर्टेन राइट्स या सर्टेन हेल्प देगी इन द नीड ऑफ आवर इन अवर नीड, ठीक है। एंड दीज राइट्स जो है ये रेफ्यूजीज या इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं मिलेंगे, ठीक है, माइग्रेंट्स को नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट सिटीजनशिप इज, दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, आप सिटीजन हो, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है, एंड यू हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पॉलिटिकल कम्युनिटी, एंड पॉलिटिकल कम्युनिटी जो है इट एक्सपेक्ट सर्टेन ड्यूटी फ्रॉम यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इनसाइडर आउटसाइडर डायलेमा, ठीक है। ये इसका सिंपल सा मतलब चलो बता देता हूँ कि जो इंडियंस हैं वी आर हिपोक्रेट्स इन सम राइट्स, ठीक है। हम हिपोक्रेट्स क्यों हैं? बिकॉज सपोज अगर यूएसए में इफ कोई इंडियन है उसके साथ अनजस्ट बिहेवियर होता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज दे आर इंडियन और देयर स्किन कलर इज डार्कर, सो वी और दे से कि यू आर नॉट फ्रॉम यूएसए सो यू शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, सो वी become very angry कि why should a person should be discriminated on the basis of their nation, कि अगर कोई इंसान किसी देश से आया है तो उसको आप क्यों डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। सो हम उसको क्रिटिसाइज करने लगेंगे कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। हाउएवर अगर सपोज जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 75% कोटा लाया था रेसिडेंट के लिए, कि अगर हमारी खुद की गवर्नमेंट, सपोज आई एम फ्रॉम राजस्थान, ठीक है, और जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो इफ इट विल गिव मोर प्रिविलेजेस टू राजस्थानी पीपल sorry, then to other community, so we will be happy, we will say okay because we are Rajasthani we have first claim to Rajasthan, जिसको son of the soil बोलते हैं ना, so we have first claim to all the things that Rajasthan have, so the जो outsiders हैं they should be discriminated, so within India we will play the game of insider outsider, whether it is politics, whether it is government job, but when Indian goes outside, they expect कि जो other people हैं of those countries, they should not treat them as aliens or people from other country, ठीक है। So that is what insider outsider dilemma is. Now idea of citizenship, जो citizenship है इसका idea कहाँ से आता है? Obviously it is closely linked with the idea of nation state. नेशन स्टेट का मतलब ये होता है, नेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि जो कंट्री होता है इट इज नॉट जस्ट अ टेरिटरी, जैसे जो हम इंडिया का मैप बना देते हैं, तो इंडिया इज नॉट जस्ट अ मैप, इंडिया इज ऑल्सो अ आइडिया, एक आइडिया है। वो आइडिया आप सेकुलरिज्म बोलो इंडिया का, डेमोक्रेसी बोलो, रिपब्लिक बोलो, वट एवर इट इज, बट जो इंडिया है इट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया, ठीक है। सो India, we also have a unique culture and a shared history. So, जो citizenship है, it also gets linked to race or language. But this usually happens in European countries like Germany. Obviously, जो हमारा our concept of Indian citizenship is very broad. We have not linked citizenship with any merit. या कि either you are Hindu or you are Muslim or you are Dravidian or you are Aryan or whatever you are, then only you will be citizen. है ना? So we have a very broad idea of citizenship. We have not linked citizenship with any language or any gender or any caste or any religion. Anyone can become citizen by birth, descent, registration, naturalization or inclusion of territory. ठीक है, ये constitution में हम पढ़ेंगे, ठीक है। Then idea of universal and global citizenship, तो ये एक lofty idea है. It simply means कि there are people who are refugees, who are migrants. there are countries जैसे सीरिया हो गया ना, अफगानिस्तान हो गया, तो वहां पे वॉर वगैरह चलती रहती है, तो there are a lot of people who do not even have basic necessities of their lives and they are stateless, मतलब they do not have any state which can protect their rights, ठीक है। so in that way should there be a global citizenship कि जो we are part of earth, सिंपल सा मतलब है कि हम अर्थियन है, हम ना इंडियन है ना अमेरिकन है ना कुछ है, ठीक है। सो शुड इट बी देयर, ठीक है। तो ये एक आइडिया ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि अगर आप बाउंड्री मिटा दोगे, बिकॉज जो कंट्रीज हैं दे हैव डेवलप्ड
इन द डिफरेंट ट्रेजेक्टरी इकोनॉमिकली. सो अगर आप बाउंड्री हटा दोगे तो अगर इंडियन पॉपुलेशन पूरी की पूरी स्विट्जरलैंड पे जाके बस गई तो स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, है ना. सो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल, बट इट इज जस्ट एन आइडिया. एंड द बॉर्डरलेस वर्ल्ड ऑल्सो कम्स विद द थ्रेट ऑफ टेररिज्म एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग. तो सिर्फ आपको फ्रीडम नहीं हो जाएगी स्विट्जरलैंड जाने की, जो अफगानिस्तान के तालिबान उनको भी फ्रीडम हो जाएगी इंडिया आने की. ठीक है. तो दिस इज व्हाट वन थिंग इज. नाउ नेशनलिज्म एज अ टूल. जो नेशनलिज्म है, whenever we talk about nationalism, it is a very passionate topic and it comes with patriotism. मतलब आप nationalist हो, मतलब you love your country, you love your national song, national anthem, you love your army, you love your everything, है ना. So it brings intense loyalty towards India or deep hatred. For example, we have deep hatred for Pakistan or China. ठीक है. So जो नेशनलिज्म है, इट इज अ पॉजिटिव फोर्स ऑल्सो, इट इज अ पॉजिटिव फोर्स, क्योंकि जर्मनी और जो इटली थे, दे वर कंप्लीटली डिवाइडेड नेशंस, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडिया ऑफ नेशनलिज्म दे वर यूनाइटेड. बट इट इज ऑल्सो अ डिवाइडिंग फोर्स ऑल्सो, है ना. इट हैज ब्रोकन अप द कंट्रीज लाइक यूएसएसआर एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन. इंडिया में जो था नेशनलिज्म था, इट वाज एन यूनाइटिंग टूल, है ना, बिकॉज गुजराती, महाराष्ट्रियन, मारवाड़ी and Bengalis all came together to fight British imperialism. So it was a uniting tool in India. Now what is nation? So remember, जो स्टेट है, ये मेरे ख्याल से 2020 में या 2021 में यूपीएससी में क्वेश्चन था, डेफिनेशन ऑफ स्टेट. ठीक है. सो देर इज वन थिंग कॉल्ड नेशन, वन थिंग इज कॉल्ड स्टेट. तो आप ऐसे समझ लो कि जो स्टेट होता है, ये लीगल व्यू होता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो स्टेट होती है उसकी एक डेफिनेट टेरिटरी होती है, इंडिया का एक डेफिनेट मैप है. देन दे हैव अ सोवरेन गवर्नमेंट, वी हैव इंडियन गवर्नमेंट एंड सर्टेन प्रेजेंस ऑफ लॉ. दैट इज व्हाट स्टेट इज. जो नेशन होता है ना, इट इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी. सो वी आर इंडियन, इट मीन्स कि वी हैव सर्टेन कॉमनैलिटीज. अब वो चाहे फूड का बात करो, आप लैंग्वेज की बात करो, हमारी हिस्ट्री के शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश स्ट्रगल की बात करो, या आवर आइडिया ऑफ टॉलरेंस की बात करो. सो जो नेशन होता है वो आइडिया होता है, इट इज अ कॉमन आइडिया विच वीव्स पीपल टुगेदर. जो स्टेट होता है वो एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है. तो व्हाट आर द आइडियाज विच कैन which unites us? It's shared belief. We have a belief ki on a vision of future ki we should be a democratic country, we should be a secular country, we should be a republican country. ठीक है. तो ये हमारा एक ड्रीम है, एक shared belief है, and everyone believe in this. Then second, history. We have a sense of continuing history. जो हमारा, चाहे आप चोला एम्पायर की बात करो, चाहे मुगल्स की बात करो, चाहे whether we are talking about British imperialism, so we have a common history that also makes us a nation. Then we have a territory, we have a deep attachment, जैसे भारत माता का जो concept है of motherland, similarly रशिया में fatherland का concept होता है ना. So we consider India as our motherland. ठीक है. And then shared political ideas like democracy, secularism, we believe in such things. ठीक है. So these are the things which forms a commonality or a common nation. Now issue with rigid nationalism. अगर हम rigid nationalism की बात करें तो वो क्या होता है? So it get linked with a language or religion. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान या अफगानिस्तान, वहां पे ऐसा माना जाता है कि जो पीपल हैं ऑफ इस्लामिक फेथ, दे शुड गेट प्रायोरिटी ओवर अदर पीपल. तो सम कंट्रीज जो है वहां पे वो रिजिड, या लैंग्वेज, जैसे जर्मनी है, वहां पे जो जर्मन है लैंग्वेज, द पीपल हु स्पीक जर्मन लैंग्वेज, दे आर गिवन प्रायोरिटी टू ऑल अदर पीपल. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है कि ऑल रिलीजन आर इंटरनली डाइवर्स. विद इन इस्लाम देयर इज अ सेक्ट ऑफ सुन्नी, शिया, अहमदिया. तो विद इन दिस विच आप किसको देखोगे. ठीक है. एंड देन ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज आर कल्चरली डाइवर्स. दुनिया में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे 100% क्रिश्चियंस, हिंदूज या जियूज या मुस्लिम्स या सिख रहते होंगे ना. पूरी की पूरी मिक्स्ड पॉपुलेशन रहती है पूरे कंट्री में. सो यू कैन नॉट जस्ट लिंक द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विथ वन रिलीजन, वन कास्ट और वन एनीथिंग विथ वन आइडेंटिटी. ठीक है. क्योंकि इफ यू विल डू दिस, अगर ऐसा लगेगा, देन पीपल विल गो फॉर नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन. फॉर एग्जांपल जो भी बास्क रीजन है स्पेन में, वहां पे ये चीज चल रही है. देयर आर डिफरेंट अदर रीजंस आल्सो, कि जहां पे दे विल फील कि दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द state, by the government, by the nation. So in that case what they will do is try to form their own government or their own nation state. ठीक है. So what is the how to break the idea of rigid nationalism with the idea of pluralism. ठीक है. प्लूरलिज्म का मतलब ये होता है, we will accept people of different identities. ठीक है. तो अगर कोई पर्सन सपोज LGBT है, their sexual orientation, या वो फीमेल है या मेल है या ट्रांसजेंडर है, या वो ब्लैक है या व्हाइट है,
या कुछ भी उनका स्किन कलर है, ठीक है, या वो हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, वी विल एक्सेप्ट एवरीवन. दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ प्लूरलिज्म इज. सिंपल, ठीक है. इट ऑल्सो मीन्स टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ कल्चरल माइनॉरिटीज. जो माइनॉरिटीज होती हैं उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लूरल सोसाइटी. नेक्स्ट इज सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म इज अ वेरी कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट. वेरी कंटेस्टेड मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज्ड और बहुत ज्यादा स्क्रूटिनाइज्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है. जो आइडिया है सेकुलरिज्म का, देयर इज नो सिंगल मॉडल, ठीक है. बट एक जो कॉमनैलिटी है, देयर इज नो सिंगल मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, बिकॉज फ्रांस जो है वहां का डिफरेंट सेकुलरिज्म है, इंडिया जो है वहां का डिफरेंट सेकुलरिज्म है. बट एक एक जो कॉमनैलिटी है वो ये है कि आईडी जो इन्फ्लुएंस है रिलीजन का विद इन द गवर्नमेंट, इट शुड रिड्यूस, ठीक है. जो गवर्नमेंट है उनका रिलीजन पे, सॉरी, रिलीजन जो है उसका गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. एंड देन कोई भी ऐसा रिलीजन डिसएडवांटेज पे नहीं आ जाना चाहिए बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, कि कोई रिलीजन जो है उसको आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो एंड देन यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग सम अदर रिलीजन, ठीक है. So this is what secularism is. Now secular state के हम definition बताते हैं. Secular state जो होता है, it must not run by a particular religion. जैसे इंडिया है, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडियन स्टेट का, इंडियन गवर्नमेंट का, ठीक है. दिस इज अनलाइक द थियोक्रेटिक स्टेट, जैसे कि पापाल स्टेट्स ऑफ मिडिवल यूरोप, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो था दैट वाज द प्राइम रिलीजन, ठीक है. या अभी जो इस्लामिक स्टेट्स है ना, उनमें जो इस्लाम है दैट इज द प्राइमरी रिलीजन. तो जो सेकुलर स्टेट होते हैं, द सेकुलर स्टेट डू नॉट हैव द रिलीजन ऑफ देयर ओन. Then second thing is it must not have a formal or legal alliance with any religion. जैसे कि पाकिस्तान का इस्लाम के साथ है ना, so they should not have any formal or legal alliance with any religion, ठीक है. Then the laws and goals must be that सिंपल सा मतलब ये कि जो आपका लॉ है दे शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम नॉन रिलीजियस सोर्सेस, ठीक है. तो अगर आपका मनुस्मृति या शरिया या बाइबल, इससे अगर लॉ आ रहे हैं, so that is not a secular state, ठीक है. सिंपल से मतलब है. तो जो तीन कॉमनैलिटी है वो आप देख सकते हो, ठीक है, कि जो स्टेट होता है दैट शुड नॉट हैव एनी रिलीजन, देन दे शुड नॉट हैव एनी फॉर्मल अलायंस विथ एनी अदर रिलीजन, एंड देन जो लॉज एंड गोल्स हैं इट शुड बी पार्शली डिराइव्ड फ्रॉम नॉन रिलीजियस सोर्सेस. बस यहीं पे जो कॉमनैलिटी है ये खत्म हो जाती है. अब वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म और इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म डिस्कस करेंगे हम. ये आपका GS2 में पूछ चुका है क्वेश्चन भी, ठीक है. वेस्टर्न मॉडल में पहला है अमेरिका, ठीक है. अमेरिका जो है यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है स्टेट और रिलीजन के बीच में, कि स्टेट जो रिलीजन है दे कैन नॉट इंटरफियर इन वन अनदर. there is an absolute freedom of expression in America, so you can abuse anyone's god. आप किसी भी भगवान को किसी को भी अब्यूज कर सकते हो एंड यू विल बी नॉट थ्रोन इन जेल बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है. तो वहां पे वो चीज है. देन वहां पे जो अमेरिका है, स्टेट डज नॉट एड एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती है गवर्नमेंट, ठीक है. एंड देन देयर इज अ लिटिल स्कोप फॉर माइनॉरिटी राइट्स, बिकॉज सिंपल सी बात है कि जब स्टेट जो है वो it is not extending any right to any religion, so that means कि they will not protect the minority religion also, ठीक है. For example, France जो है it has banned hijab in government building, so they have said France जो है उसका बहुत ही strict, जो फ्रांस का सेकुलरिज्म है, and that has been asked in exam also last year, जिसको बोलते हैं, है ना. So it means a strict separation between religion and state. तो फ्रांस में if you are entering into a public school, मतलब गवर्नमेंट स्कूल या पब्लिक ऑफिस वगैरह में जा रहे हो, तो यू कैन नॉट wear any symbol. तो इवन जो सिख्स हैं they cannot wear a turban, they cannot have a kirpan there. या जो मुस्लिम्स है they cannot wear a hijab, one cannot wear a tilak, ठीक है. So that is a very, because they do not want public display of religion, especially on the government institutions, ठीक है. So that is a strict principle of western secularism, जो कि which is followed by France, ठीक है. अब जहां तक इंडियन सेकुलरिज्म की बात है, तो there is no strict separation, बहुत ज्यादा नहीं है. मतलब जो इंडिया है इस पे जो गवर्नमेंट है इट इज नॉट कंप्लीटली अलूफ टू रिलीजन, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अमरनाथ यात्रा है ना, अभी चल रही है, तो जो गवर्नमेंट है इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दैट प्लेस, स्पेशल ट्रेन्स चलाएगी. या जैसे हज है तो हज सब्सिडी वगैरह देती है गवर्नमेंट, है ना. तो वो सब चीजें करती है गवर्नमेंट. सो इट इज नॉट अलूफ टू रिलीजन, इट विल हेल्प पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है. तो वी आर अ सेकुलर कंट्री बट वी आर नॉट, हम ऐसा नहीं है कि हम रिलीजन को जो है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है. देन इट कैन एंटर इनटू रिलीजन, जो इंटर रिलीजन ऑपरेशन है उसको भी कम करता है.
फॉर एग्जांपल बैनिंग अनटचेबिलिटी। अब जो छुआछूत है, इफ गवर्नमेंट हैज बैंड इट, सो वन कैन नॉट से दैट यू आर इंटरफेयरिंग विद माय रिलीजियस राइट्स, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज द राइट टू डू दैट। देन इंडिया जो वेस्टर्न मॉडल में नहीं था, इंडिया हैज कल्चरल राइट्स एंड माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है, तो इंडिया कैन प्रोटेक्ट द कल्चरल एंड माइनॉरिटी राइट्स ऑफ जो माइनॉरिटी लोग हैं उनका, ठीक है। देन इट सपोर्ट्स सम रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है, जैसे अभी ट्रिपल तलाक है उसको बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, है ना, सो इट कैन डू दैट। देन इट एंगेजेस पॉजिटिवली विथ ऑल रिलीजन, सो दैट्स व्हाई जो आइडिया है इंडिया सेक्युलरिज्म का, इट इज एन आइडिया ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स, ठीक है। तो इट इज नॉट कि वी विल बी अलूफ विथ रिलीजन, बट वी विल इक्वली रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, सिंपल। नाउ क्रिटिसिज्म क्या है इंडियन सेक्युलरिज्म का? पहला है कि इट इज एंटी रिलीजियस, तो ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग। इंडिया इज नॉट एंटी रिलीजन, बट इट इन फैक्ट प्रमोट्स एंटी रिलीजियस डाइवर्सिटी, ठीक है। दूसरी चीज है वेस्टर्न इंपोर्ट, कि मतलब वेस्टर्न से ये आइडिया इंडिया में लाया गया, तो इसके आप दो चीजों को क्रिटिसाइज कर सकते हो। पहली चीज तो वेस्टर्न इंपोर्ट नहीं है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्याज या इवन बिफोर मौर्याज, जो बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म है, दे हैव कोएग्जिस्टेड एंड दे हैव टॉलरेटेड ईच अदर्स रिलीजन, सो सेक्युलरिज्म इज नॉट अ वेस्टर्न इंपोर्ट। एंड सेकंड, इवन इफ इट इज अ वेस्टर्न इंपोर्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर कोई अच्छी चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज से, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, ठीक है। और हमने अगर इंपोर्ट किया भी है वेस्टर्न कंट्रीज से, तो वी हैव सुटेबली अडॉप्टेड इट विथ इंडियन नीड्स। नेक्स्ट इज इट इज माइनॉरिटिज्म, मतलब ये माइनॉरिटीज को फेवर करता है बिकॉज इट हैज आर्टिकल 29 एंड 30, ठीक है। तो इस पे आप ये बोल सकते हो कि बट दे आर वीकर ग्रुप, है ना, दे आर वीकर माइनॉरिटीज जो होते हैं, दे आर इन द वीकर पोजीशन इन द सोसाइटी, सो दे डू नीड स्पेशल प्रोटेक्शन। उनको आप स्पेशल प्रोटेक्शन दे सकते हो, स्पेशल राइट्स दे सकते हो। हाउएवर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि क्या 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 जो पर्सनल लॉज है, जो डिफरेंट माइनॉरिटीज के डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं, which are discriminatory in some respect, so in that case should state interfere in that, और कि कल्चरल राइट्स बोल के उनको उन पे इंटरफेयर नहीं करे, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज इंटरवेंशनिस्ट, मतलब ये एंटर करता है रिलीजन में, फॉर एग्जांपल इट बैंड ट्रिपल तलाक, ठीक है, तो इट इज इंटरवेंशनिस्ट। तो इट इज नॉट इंटरवेंशनिस्ट, बट इट इज अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब है कि इट विल एंटर only when it is needed, when state feels that the rights of people are unjustifiably violated, then only it will enter it. And then finally it is used as a vote bank politics, secularism. तो देखो, as long as it is not leading to a discrimination, अगर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हो किसी के साथ, तो किसी भी प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल कल्चर पे दे विल पिक अप रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एज टू मोबिलाइज ग्रुप। इट इज इम्पॉसिबल कि आप ये चीजें नहीं करो, कोई भी करेगा, मोबिलाइज करेगा ग्रुप को, ठीक है। सो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ इट इज बीइंग यूज्ड इन वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है। सो दिस इज द होल बुक, जो कि 10 पन्ने में कंपाइल की गई है। दिस इज द बुक ऑन पॉलिटिकल थ्योरी, जो 11th का है। वट एवर क्वेश्चन दैट यूपीएससी कैन आस्क विल आस्क फ्रॉम दिस नोट्स, इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग। नाउ दोज हु हैव जॉइंड दिस, है ना, तो उसको उनको आई विल शेयर द पीडीएफ नाउ। सो आप लोग क्या करो, प्रिंट आउट निकाल के जल्दी से पढ़ लो, इसको एक बार मार्क कर लो, बिकॉज जस्ट नाउ यू हैव रेड इट, सो इट विल बी फ्रेश इन योर माइंड, एंड देन यू कैन रिवाइज इट। सो आपका एक पोर्शन तो ऑलमोस्ट कवर हो गया है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब हाँ, अब इफ समवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, दे कैन आस्क।